Hello, Assalamu alaikum, good evening and welcome to the Pavilion. आप देख रहे हैं A Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And the news is that South Africa have defeated New Zealand and have defeated them with a considerable margin. We're going to talk about that, but before that, let me bring into the conversation my four esteemed guests. I've got four former captains, four wonderful analyzers of the game, four super awesome people. First up, I've got Shoaib Malik. Shoaib, good evening and assalamu alaikum. Good evening, walaikum salam, assalamu alaikum. With that, I have Misbah. Good evening, assalamu alaikum, Misbah. Good evening, you alaikum assalam, assalamu alaikum to everyone. Also with us in the studio, Moin Khan, the Silver Fox. Good evening, assalamu alaikum, Moin. Good evening, walaikum assalam, assalamu alaikum everyone. And the cricket royalty, the Sultan of Swing, Wasim Akram. Good evening, assalamu alaikum, Wasim. Good evening, ji, assalamu alaikum everyone. Right, let's take a look at the match summary. First up on your screens, coming up, ये हुआ था मैच मुकाबला आज न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। साउथ अफ्रीका को बैटिंग की दावत दी और साउथ अफ्रीका ने उस दावत को भरपूर तरीके से निभाया। 357 for the loss of 4. Van der Dusen and Quinton de Kock with centuries right on top. Miller the killer coming in with a 53 and the captain Bavuma looked good at the beginning of the innings with that 24. Some shots he played were really exceptional. 50 overs, total 357 for 4. Not very impressive for the New Zealand bowlers. Sadi did pick up the 2 wickets, but he was expensive for 77. Bolt 1 for 49 and Nisham 1 for 69. In response, New Zealand looked like a very different team today. They just couldn't go after that total 357. They were all out 167 in 35.3 overs. The only considerable innings came from Glenn Phillips, who kind of wagged the tail in the end with that 60 contribution. Young and Mitchell 33-23 and nothing else special. Maharaj picking up 4 for 46, looking really good. Hansen 3 for 31 and Kwetzi 2 for 41. And South Africa winning this one by 190 runs. This is how it went down. And with that, आइए नजर डालते हैं points table पे. और ये रहा आपका points table. Now this is the updated points table, and Pakistani fans are going to be. Pakistan has played 7 games, 3 defeats. And 3 victories and 4 losses. Now this is where it's going to get interesting now. Pakistan must win its remaining 2 games, and उसमें margin का भी एक position है कि उतने margin से होगा. Also an interesting thing, Sri Lanka and New Zealand have a game to go as well. So this table is becoming very, very interesting towards the business end of the tournament. The top 4 teams, of course, end up in the semi-finals, and everybody is eyeing the top 4 spots. And England, the defending champions, right at the bottom, they have nothing to lose. So now they become a very dangerous team because they're already at the bottom of the table. And that's your points table this evening. Points table brought to you by Pepsi. Wasim, South Africa looking very, very dangerous. Unbelievable. Average first innings score 348 in this World Cup by them. And why would you win a toss and put them in? I'm all for teams playing to their strength. I understand कि अभी तक जो इस वर्ल्ड कप में 32 मैचों में 9 दफ़ा कप्तान वो जीता जिसने टॉस जीता, जिसका मतलब है कि कैप्टन. Wasim, South Africa looking very, very dangerous. Unbelievable. Average first innings score 348 in this World Cup by them. And why would you win a toss and put them in? I'm all for teams playing to their strength. I understand कि अभी तक जो इस वर्ल्ड कप में 32 मैचों में 9 दफ़ा कप्तान वो जीता जिसने टॉस जीता, जिसका मतलब है कि कैप्टन थोड़ी गलती कर रहे हैं कि करना क्या है. I mean today was a very simple equation against South Africa. Let them bat second. B उनको चाहिए था कि उनको कंफर्ट जोन से निकालें. उनकी कंफर्ट जोन है बैटिंग फर्स्ट. गेट टू 350 with their bowling with Rabada, Nagidi, Coetzee and all these guys are really bowling well and quick. And I forgot Jansen, one of their main bowlers, who is taking wickets last power play. I think last 4 games he's got 8 wickets, 2 in every one. So he starts the winning stuff from South Africa. But New Zealand injuries are definitely hammering them. I mean Tim Sadi, they played today, who's medium pacer, very experienced, but Ferguson is different ball game, different beast, a lot more pace in the mid overs, so there was no problem for South Africans batter. They toyed around with them. Although they were only 43 in first 10,
with 44 dot balls, but उसके बाद they just बड़े casual खेल रहे हैं ये, कोई लगे नहीं जल्दी में है, कंट्रोल में लगे हैं सारे. Very controlled innings, 2 centuries coming in. न्यूजीलैंड ने ये सेकंड हाईएस्ट टोटल से हारे हैं वर्ल्ड कप्स के अंदर. इससे पहले 215 रन से हारे थे ऑस्ट्रेलिया से 2007 के वर्ल्ड कप के अंदर. Clearly it looks like that there is something going on there. All of a sudden the New Zealand team has started looking a little meek, not weak, meek. अक्सर देखा है बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर टीमें जो जल्दी पीक करती हैं वो फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली नीचे भी आ रही होती है. आई थिंक आज क्लियरली जितने मार्जिन से हारे तो मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की तरफ चीज़ें जा रही हैं. एक बड़े मार्जिन से हारना, पाकिस्तान जो हम एज फॉलो कर रहे थे लाइक पाकिस्तान क्रिकेट को, तो एक मार्जिन जो हम सोच रहे थे कि बड़े मार्जिन से हारेंगे यहाँ पे, आई थिंक एक बहुत बड़ा मार्जिन रहा है ये. अगले मैच में यकीनन पाकिस्तान के लिए भी थोड़ी सी स्पेसेस खुल रही हैं इसके अंदर. अगर पाकिस्तान यहाँ पे जीतता है अगला मैच 83 के मार्जिन से, तो पाकिस्तान का नेट रन रेट अच्छा हो सकता है. और अगर वो 35 ओवर्स में चेज कर जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत ही अच्छा होगा. तो आई थिंक जिस तरह मैंने बात की है कि शुरू में टीमें आती हैं अच्छा खेलती हैं, लेकिन न्यूजीलैंड जिस तरह पीक की थी ऐसा लग रहा था कि कहीं पे बहुत अच्छा बैलेंस है इनकी टीम का. बट इवेंचुअली जहाँ बड़ी टीमों का लाइक साउथ अफ्रीका जितना इन्फॉर्म थी, आज टोटली शैटर्ड नजर आए इनके बैट्समैन. Yeah, बिल्कुल. And I think the toss call, I think Wasim, you got that right, that they really made a mess of that one. South Africa, जिस तरह वसीम ने कहा कि वो they look very calm about their business in the middle overs, खास तौर पे कोई जल्दी नहीं, शुरू के 10 ओवरों में भी वो था, बट आखिर में उन्होंने अचानक एक्सेलरेशन किया, फिर 119 रन उन्होंने उठाए towards the end of their innings with 5 fours and 9 sixes. So this goes back to आप जो बार बार कहते हैं कि वो आखिरी 10 ओवरों में T10 खेलना शुरू कर देते हैं. देखिए वो जो फार्मूला है उनका, जो बार बार शोएब भी बात कर रहा है, वो सिंपल है. आज उन्होंने थोड़ा सा लंबी देर वनडे क्रिकेट खेली है. नॉर्मली वो 20 ओवर के बाद शुरू हो जाते हैं T20, अगले 20 ओवर T20 खेलते हैं और आखिरी 10 में T10 खेलते हैं. लेकिन आज 35 ओवर तक मुझे लगा कि वनडे ही खेल रहे थे वो. 35 के बाद जो है आखिरी 15 ओवर्स में उन्होंने एकदम फिर. बट लेट मी आस्क यू व्हाई, व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर? वो क्या पिच के अंदर कुछ था, पिच स्लो थी, या बॉलर्स ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है न्यूजीलैंड के? बॉलिंग भी बेहतर की है उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुझे लगता है कि वो सोच रहे थे कि हमने यहाँ तक पहुँचना है, उसके हिसाब से वो खेले हैं. उन्होंने पैनिक नहीं किया. थोड़ा सा मुझे लगता है बॉल फर्स्ट टाइम जैसे यहाँ पे उस तरीके से नहीं आ रहा था. पुराना बॉल कटर्स मार रहे थे, तो उन्होंने कोशिश किया कि सेट बैट्समैन अंदर रहें. खामखा हम लंबा स्कोर 400 के चक्कर में ये ना हो कि 2 विकेटें हमारी गिरें तो जो 350 नज़र आ रहा है वो भी ना हो. तो उन्होंने मेक श्योर किया कि एटलीस्ट हम 350 तक पहुँचे. बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है. मुझे भी कहीं लग रहा था उस टाइम पे कि ये ना हो कि एंड पे अगर इनको ये रन ना मिले तो ये फंस सकते हैं. एंड पे अगर आपकी 2 विकेटें इकट्ठी गिर जाती हैं और कोई बॉलर अच्छी बॉलिंग कर जाता है तो होता क्या है कि आप वो जो पार स्कोर है उसके पास फिर पहुंचते नहीं हैं. बट द वे दे फिनिश दैट, मिलर ने आके जिस किस्म की बैटिंग की है, वो जो एक्सेलरेशन चाहिए थी वो उनको वहाँ पे मिली है. एंड they are in control. They are in control. All right. With that, we're going to take a break here, but when we come back, there's more to talk about. South Africa versus New Zealand. Lots more to talk about. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the Airwise app. And we are talking about the South Africa-New Zealand game, which South Africa has won by 190 runs. And that has opened up hope for Pakistan. We're going to talk about that in a bit. But let's talk about the South African batting. Shoaib, let me bring you into this conversation. They just looked fantastic in the top order. Of course, and आपने ब्रेक पे जाने से पहले मिसबा भाई से पूछा था, उसमें एक चीज़ ये भी थी, they must have planned, and that's what I think is मिचेल सेंटनर को विकेट नहीं देनी है आज, क्योंकि वो उनके स्ट्राइक बॉलर हैं इन द मिडिल ओवर्स, और उनको मैंने देखा कि काफ़ी ज़रा केयरफुल होके खेल रहे थे. तो ये एक एलिमेंट हो सकता है. ऑफ कोर्स जिस दिन उनके पहले 3 में से 2 बंदे रन्स बनाते हैं, देन नो टीम कैन टच देम द डे दे बैट फर्स्ट, और वही ये हुआ. और आज उन्होंने मेरे ख्याल में आखिरी जो 10 ओवर थे उसमें T10 को भी छोड़ के T5 खेल लिया शायद उन्होंने, इसलिए जो है ना ये हो गया. क्योंकि किलर मिलर की जो इनिंग्स थी वो ऐसी थी कि बस ना ही पूछें. और एक चीज़ ज़रूर हुई है, ये वो
प्रॉब्लम हो सकती थी अगर मैट हेनरी ना इंजर्ड होते, उनकी जगह जेम्स निशम जो है उन्होंने आके 5.3 बॉल्स किए और उसमें ही इज गिवन 69 रन्स। और वो last over पे उसको कराया फिर। जी लास्ट ओवर, क्योंकि दे वर चॉइसलेस, ही हैड टू बॉल द लास्ट ओवर जेम्स निशम, तो ये हुआ जिसकी वजह से इस टोटल पे पहुंचे। बट एज मिसबा भाई सेड कि वो एक ऐसा पीरियड था कि जहाँ पे वो ओडीआई क्रिकेट भी नहीं खेले, उससे भी मुझे लग रहा है 60 ओवर्स वाली वो जो काउंटी क्रिकेट होती थी वो थोड़ा आराम से बट दे आई थिंक द अमाउंट ऑफ फायर पावर साउथ अफ्रीका हैज नो अदर टीम हैज। Let's take a look at how Quinton de Kock went about his business, and you can take us through this, Moin, because as a keeping batsman, आज भी उन्होंने एक सेंचुरी जो है वो गाड़ी है, आपकी स्क्रीन के ऊपर लेकर आते हैं क्विंटन de Kock की आज की बैटिंग। और जरा ये बताएं कि इसकी इतनी लंबी इनिंग खेलने के बाद उन्होंने फिर पूरे 50 ओवर जो है वो कीपिंग भी की है। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट फिटनेस, जो हम मोस्टली इम्फसाइज कर रहे होते हैं अपने शो पे। फिटनेस एक तो आउटस्टैंडिंग, एंड देन ही प्लेज ऑल अराउंड द ग्राउंड, हर तरफ शॉट मारना आते हैं, तो इतने ज़्यादा ऑप्शंस हैं तो बॉलर्स को इनके खिलाफ प्लान करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। यू नो अर्ली ऑन आप इनको आउट कर लें तो कर लें, अदरवाइज आई मीन ये ऐसे प्लेयर हैं इनको इनिंग बनानी आती है। एंड देन जिस तरह ऑप्शंस की मैंने बात की है, हर तरफ ये शॉट्स खेले इन्होंने, बहुत ही आई थिंक एक तो फॉर्म ऑफ हिज लाइफ चल रही है, इस वक्त 400 कर चुके हैं, तो फुटबॉल नज़र आ रहा है इनको, ये क्रिकेट का बॉल जो है आउटस्टैंडिंग। ये जो आखिरी शॉट होगा जी, उनसे से इनिंग खेल के उनके बॉलर्स को कहा होगा गल सुन गल सुन जल्दी आओ, मिसबा can I ask you something? मेरा में ठग द कम। अच्छा मिसबा, द लास्ट आखिरी जो आपने शॉट किया है, ग्रेट 94 रन्स पे जो खेला, 94 रन्स पे खेला था, tell us, take us through that shot. What is happening, I mean, in terms of the transfer of weight in that shot, and how does he get that kind of elevation in that place? लेकिन ये शॉट ये बार-बार खेल रहे हैं यहाँ पे, पहले भी हमने देखा, बहुत अच्छी खेलते हैं, पूरा बॉल को इनसाइड अपनी बॉडी की लाइन में लेके पूरा छक्का मारते हैं उसको। ये देखें, He was ready for that. Normally थोड़ा सा छिक्का हुआ था और बिहाइंड स्क्वायर लेग हुआ था। नॉर्मली ये थोड़ा सा हिप वाले बॉल को मारते हैं, ये इतना पीछे नहीं था बॉल, लेकिन क्योंकि वो तैयार थे कि ये वाला बॉल इन्होंने करना है, तो मैंने इसको पूरा अंदर की तरफ मारना है, कमिट किया और पूरा उस शॉट को खेला। और ये साउथ अफ्रीकन खेल ने आज एक माकरम ने भी एक शॉट खेला आके, स्लोअर वन किया तो उसने ये पूरा अंदर की तरफ छक्का ही मार दिया उसको। तो दे हैव प्लान, और हर किस्म की जो बॉलिंग है उसको वो देख के आए कि अगर ये वाले बॉल ये हमें पेस ऑफ करेंगे तो कहाँ कहाँ हमने मारना उसको। और दूसरा इनकी बैटिंग का पावर का अंदाज़ा लगा लें, नॉट जस्ट इन दिस वर्ल्ड कप जी, इन लास्ट ईयर दे प्लेड 19 ODIs and they have hit 194 sixes. Right. And the highest, only team in the history जिसने 200 छक्के मारे हैं वो थी वेस्ट इंडीज़ की टीम in 2019. So imagine the power, not just in this World Cup, Klaassen, Makram, Quinton de Kock, Van Dusen, the captain was in good nick as well. Van Dusen normally बड़ी शॉट है, आज 5 छक्के उन्होंने मारे हैं। Yeah. They have all the players. Van Dusen की इनिंग्स लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये जरा देखिए और उसके ऊपर भी तबसरा कीजिए साथ-साथ में जेंटलमैन। That's Van Dusen, Moin. जी, he is also one of the very responsible players. चारों तरफ ग्राउंड के ये भी शॉट्स खेलते हैं, यू नो, एंड वेरी कंपोज, लाइक ये कोई अननेसेसरी हिट कभी भी नहीं मारते। आज भी जिस तरह इनिंग बिल्ड की है दोनों ने मिल के, यू नो, विदाउट टेकिंग एनी रिस्क, आउटस्टैंडिंग डिस्प्ले ऑफ शॉट्स। मशहूर है, पहले ये दूसरा 100 था इनका इस टूर्नामेंट के अंदर, यू नो, बहुत ही, अब ये देखें, बहुत ही क्लियर हिट मारते हैं। This really spectacular work there. I think जो बॉल की लाइन है ना, वो तमाम बैट्समैन बहुत जल्दी पिक करें, जिसकी वजह से इनको एलिवेशन मिल जाती है, नो गैप में। नॉर्मली ये स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं, इनकी टीम में ऐसे प्लेयर हैं स्पिन को अच्छा खेलते हैं। इस वर्ल्ड कप में पिछली को 3 एक इनिंगों में ये स्पिनर से आउट हुए, तो इसलिए भी थोड़ा सा उन्होंने टाइम ज़्यादा लिया, और जब ये सेटल हुए तो फिर देखें जो शॉट हैं इन्होंने खेली हैं, रिवर्स स्वीप, इवन जो पैडल स्वीप अंदर मारते हैं, बहुत डिस्टर्ब करते हैं, आपको फील्डिंग सेट करनी बड़ी मुश्किल हो जाती है। बिल्कुल सही है। डेविड मिलर की इनिंग की बात कर लेते हैं, मिलर द किलर की बात हम कर रहे हैं कि आज उन्होंने T5 खेला है। शोएब, व्हाट गिव्स हिम सो मच, आई मीन ऑब्वियसली इनकी फिटनेस है, सारे के सारे ये फिट हैं, साउथ अफ्रीकन एंड ऑल दैट, बट ये इतने आई फाउंड आउट कि व्हाई ही इज सो पावरफुल। गो फॉर इट, टेल अस प्लीज। बिकॉज रात को उसके परदादा ने कहा था कि दूध जलेबियां पाके तो सवेरे उठ के पीवी खाली पेट, वो भी कच्चा दूध।
ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣਾ देसी घी की जलेबी है कच्चा दूध ये हमें ग्रेट पुशी ने बताया यार एक्चुअली बुरा आइडिया नहीं है वैसे ट्राई किया जा सकता है ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕੇ ਨੋ 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 ਹਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਜਲੇਬੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ मिलर पे फोकस कर चल Yeah, Shebi, sorry. लव यू ब्रो गो फॉर इट किलर द मिलर मिलर देखिए मिलर का अभी मैं उसके साथ एलपीएल में खेल रहा था Right. वी वर इन द सेम टीम ये देखें मतलब इतना स्ट्रांग है सिर्फ आर्म्स एक्सटेंशन से उसने छिक्के 2 मार दिए एक एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में एक और ये देखें ये था आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल लेकिन टच फुलर था इस वजह से लेकिन इन्होंने सब जगह खेलना शुरू कर दिया तो मैं इनके साथ बैटिंग कर रहा था सो ही प्लेड लाइक 2 वेरी गुड शॉट्स ओवर एक्स्ट्रा कवर राइट तो मैंने इससे पूछा बिकॉज वी प्लेड फॉर जल्मी एज वेल राइट तो मैंने इससे पूछा व्हाट हैव यू डन बिकॉज यू स्टार्टेड प्लेइंग टुवर्ड्स कवर्स एज वेल तो मुझे कहता है या लॉट ऑफ बॉलर्स दे started exploiting my weak area which was outside off stump so I've practiced a lot but having said that उसने एक और बड़ी अच्छी बात की उसने कहा कि हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो जिसमें वीक होते हैं एज अ बैटर उस पर प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं जो हमारी स्ट्रेंथ्स है उस पर नहीं करते हम कि वो कहते हैं हमें वो आती हैं नहीं ऐसा नहीं कहता मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे भी उसी तरह प्रैक्टिस करता हूँ जो मेरा वीक एरिया था Right. सो वी सी दैट ही हिट्स अ लॉट ऑफ सिक्सेस ओवर एक्स्ट्रा कवर एज वेल सो ही वर्कड हार्ड मिसबा भाई ऑलवेज से कि जब तक आप रेडी नहीं हैं खुद उस चीज़ को अचीव करने के लिए तो practice makes a man perfect. Yeah, practice makes that's the kind of dedication that you Yes. really look for. Let's talk about the New Zealand bowlers now. It looked almost as if they, especially the spinners, they looked okay. They were fine, but it was not a very outstanding. वो कोई ball में कोई खास movement वगैरह शुरू में भी नहीं नजर आ रही. I think the big mistake they did, you see, you have to, when you play games like this, or any game in fact, पहले आपके ख्याल में होना चाहिए कि जी वेदर क्या है, ये ज़्यादा गर्मी तो नहीं है, बिकॉज उससे भी फ़र्क ज़रूर पड़ता है. और पिच की कंडीशन पता थी कि पिच ने यही रहना है, अगर थोड़ी बहुत हेल्प करनी है किसी को तो वो सेकंड बॉलिंग को होगी हल्की फुल्की बिकॉज ओवर लाइट कंडीशंस बिट ऑफ ड्यू अर्ली ऑन. बट आई थिंक इन्होंने स्कोर इतना कर दिया था एंड टिम फर्गसन से बड़ा फ़र्क पड़ा लाइक आई सेड अर्ली ऑन. पेस गाय विद द पेस एंड टिम सदी मीडियम पेसर मे बी नॉट मैच फिट येट. मैच फिट मीन्स मैच प्रैक्टिस नहीं की. हेनरी का भी बहुत फर्क पड़ा. अर्ली ऑन अच्छी बॉलिंग की ट्रेंड बोल्ड मैट हेनरी ने बड़ा प्रेशर रखा उन्होंने. विकेट टेकिंग बॉल्स भी थे, सेंसिबल खेले हैं साउथ अफ्रीकन. और वो जब पीरियड निकल गया है तो उसके बाद टिम साउदी जब स्टार्ट किया उन्होंने ठीक था. जैसे ही इंजरी हुई है स्पिनर आए हैं तो वहाँ पे फिर थोड़ा थोड़ा उन्होंने जो है वो गेम में वापस आना शुरू हैं. बड़ा सेंसिबल खेले हैं दोनों बैट्समैन और उस पार्टनरशिप ने मेरे ख्याल में बिल्कुल फिर इंजरी पार्टनरशिप सारी चीज़ें मिल मिला के उन्होंने जो है बिल्कुल. एक चीज़ ज़रूर है यहाँ पे कि बहुत ये जैसे न्यूजीलैंड ने आज मिस्टेक की, दे वन द टॉस, दे पुट साउथ अफ्रीका टू बैट फर्स्ट. बहुत सारी टीम्स को ये देखना पड़ेगा कि सेकंड टाइम में ठीक है बॉल स्किड करना शुरू कर देता है और अच्छा आता है, ड्यू फैक्टर भी आता है. बट साउथ अफ्रीका के केस में एक और बहुत अच्छी चीज़ है, वो ये है कि जब वो पहले बैटिंग करते हैं तो उनके बैटर्स जो हैं वो फिर आपको धोते हैं अगर ऊपर से अच्छा स्टार्ट मिल जाए. उनकी बॉलिंग का एक बड़ी अच्छी चीज़ है इस वर्ल्ड कप में. अगर हम देखें तो सारे टॉल हैं उनके बॉलर्स, तो जब बॉल स्किड करता है वो बाउंस के साथ स्किड करता है, इसीलिए बैटर्स जो हैं उनको मोस्टली वो तंग हो रहे हैं जो ये साउथ अफ्रीका के पेस है या जो पेस अटैक है. तो मेरे ख्याल में एक तो एलिमेंट ये है कि उनको पहले बैटिंग ना करने दें, दूसरा एलिमेंट ये भी है दूसरी बॉलिंग भी ना करने दें उनको डे में जो है ना डे में उनको तो फिर क्या ये भी नहीं कराना वो भी नहीं कराना तो कराना की है. अपनी स्ट्रेंथ छोड़े साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नो मैटर व्हाट. I've just found out that New Zealand they only have one treble reserve and he's a batter. I think Blundell his name is. वो लंबे जो फास्ट साढ़े को ले लो. लंबा फास्ट बॉलर लंबा जेमिसन was with the traveling वो जो एक्स्ट्रास थे वो वापस चला गया. क्यों? No, he just left. Yeah, I mean, there must be something. There must be a commitment. Let's talk about that South African. आज एक टाइम पे सिचुएशन ये हो गई थी कि कमेंटेटर्स कह रहे थे कि अब अगर किसी को इंजरी हो गई तो दे हैव टू फील्ड विद द 10 क्योंकि बाहर बंदा कोई नहीं बचा. नहीं उन्होंने एक जो उनका सपोर्टिंग स्टाफ है उसको किट पहना दी थी उन्होंने. Can but it'll take bit of time come from New Zealand. Yeah, New It's just not off the road, is it? All right. With that, we're going to take a break here at the Pavilion. We'll see you on the other side.
Welcome back from the break. You're watching the Pavilion on A Sports, 10 Sports, and the ARY Zap app, and on YouTube. And we are talking about the South Africa-New Zealand game. South Africa winning with this one with a huge margin. Now, let's talk about the South African bowling before we. Can I explain the audience what is the scenario for Pakistan? Please, by all means. पाकिस्तान का अब जो सिनारियो ये बन रहा है कि पाकिस्तान obviously need to go above New Zealand run rate. We all know that. That's obvious. Now Pakistan need to beat New Zealand. जब वो अलहदा बाकी मैच तो जीतने हैं, न्यूजीलैंड ने तीनों हारने हैं, बट न्यूजीलैंड से जब मैच खेलेंगे they have to win by 83 runs or in 35 overs. That means वो कोई भी टोटल करेंगे तो हमने अगर पाकिस्तान बैटिंग सेकंड करेगी उन्होंने 35 ओवर में वो टोटल करना है और 83 रन के डिफरेंस से अगर बैटिंग पहले करते हैं तो 83 रन के डिफरेंस से इन्हें जीतना पड़ेगा. सो दैट्स अ सिनेरियो. अगर न्यूजीलैंड एक मैच जीत जाती है तो अगर तीनों हार जाती है तो फिर तो पाकिस्तान जीत के अपने मैच पहुंच जाएगा. Yeah, interestingly, Wasim, we have tweets that have come out from जी. We have न्यूजीलैंड के भी दो रह गए, हार गए हैं तो दो रह गए, तीन नहीं. हमें दो जीतने उनको दो हार गए. पाकिस्तान न्यूजीलैंड मैच के बाद आपस में इनके मैच के बाद इन दोनों का एक और मैच है. हाँ, एक और उनका श्रीलंका से न्यूजीलैंड का और पाकिस्तान का इंग्लैंड से. अगर न्यूजीलैंड दोनों हार गई तो फिर तो पाकिस्तान के लिए दोनों जीत के स्ट्रेट अवे पहुंच जाएंगे रन रेट का. लेकिन अगर वो एक जीत गए तो फिर ये सिनेरियो जो है फिर नेट रन रेट पे एक चीज जरूर हो सकती थी. जो लास्ट वाला मैच था, जैसे हमारे ओपनर्स अच्छा खेल गए थे, उसको और जल्दी खत्म करना चाहिए था. उससे ये होना था, ये जो मार्जिन था ये और कम हो जाता. जैसे वसीम भाई ने एक्सप्लेन किया, इधर 35 रन्स इफ यू बैट फर्स्ट, 83 रन्स, और अगर आप चेस कर रहे हैं तो 35 ओवर, ये बढ़ भी सकता था. जो ओवर्स आपको ज्यादा मिल सकते थे. और अगर एफ्स एंड बट्स पे जाना है तो अगर साउथ अफ्रीका वाला जीत जाते तो ये दिन ही ना देखना पड़ता हमें. बट दैट्स हाउ इट इज. टॉकिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, लेट्स टॉक अबाउट द साउथ अफ्रीकन बॉलिंग. वसीम, दे एज मिसबा सेड के वेरी लेट इनटू द इनिंग्स, बॉलिंग सेकंड, उनके सीमर्स का बॉल जो था वो उस वक्त भी सीम कर रहा था, मूव कर रहा था, कट कर रहा था, स्विंग कर रहा था. हाउ आर दे बीइंग एबल टू डू दैट? वी नो आई हैव एक्सप्लेन्ड जस्ट बिफोर मी के एक तो लंबे हैं सारे, 6 फुट प्लस हैं. यानसन इज अबाउट 6'5", 6'6", ही इज अ जायंट. एंड जब आके ऊपर सारों का हाई आर्म एक्शन है, जब आके आप ऊपर से गेंद मारते हो, चाहे वो विकेट पे हल्का सा अगर ओस या ड्यू गिरा हुआ तो बॉल बाउंस भी होता है और स्किट भी होता है. देखें ना, पड़ के निकल रहा है इसका बॉल. एंड देन गुड कैरी, गुड हाइट, गुड हाई आर्म एक्शन. लुक एट द कैरी, इट लुक्स अ डिफरेंट पिच ऑल टुगेदर व्हेन साउथ अफ्रीकन बैटेड. एंड लुक एट दिस, व्हाट अ कैच एज वेल इन सेकंड स्लिप. But pace, pace did that. अगर ये मीडियम पेसर होता है, ग्राउंड के बाहर होती. So they all bowled really well and Jansen, like I said, 12 विकेटें पावर प्ले में इस वर्ल्ड कप में ले चुका है. और पिछले चार मैचों में हर पावर प्ले में 2 विकेटें ले रहा है. तो और दूसरा वसीम भाई, एक चीज़ मैंने देखी है, जब हम भी खेलते थे इनके साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, इवन यूएई में, तो इंग्लैंड से भी खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया से भी खेलते थे, न्यूजीलैंड से भी, लेकिन इनके बॉलर हमेशा रात के टाइम मुश्किल होते थे. रात के टाइम ये आपको नए बॉल पे 15-20 ओवरों में they have the quality. There has to be some explanation to it because Bumrah does the same thing. Bumrah is also like that, quality and will. Bumrah is the only one. Bumrah is also like that. वैसे UAE conditions में when you bowling under lights तो वो आपको स्विंग ज़्यादा होता है. वसीम भाई ने, मोइन भाई ने, हम सब लोगों ने काफ़ी क्रिकेट वहाँ खेली है, तो वहाँ ये वाला एलिमेंट ज़रूर है. बट ये एडवांटेज उनको ज़रूर जाता है, एज वसीम भाई एक्सप्लेन, कि वो टॉल हैं. जब टॉल आते हैं, हिट द डेक हार्ड, वो मारते अच्छी जगह पे, रूम नहीं देते हैं, तो वो फिर बॉल थोड़ा सा भी अगर डिविएट हो. लेकिन मैं फिर भी इसमें थोड़ा सा मुझे है कि इनकी जो क्वालिटी है वो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर भी लंबे हैं और वो बहुत अच्छी सीम. इवन आप देखें ना, वो हेजलवुड और कमिंस तो ऐसी जगह पे, बट उनका गेंद ऐसे नहीं, और वो इतने इफेक्टिव भी नहीं है. उनको अगर विकेट्स और एवरेज देखें तो साउथ अफ्रीका टॉप पे है फास्ट बॉलर्स की विकेटों में. एंड देन इट्स पाकिस्तान. हाई आर्म एक्शन से भी तो फर्क पड़ता है. हाई आर्म से और नहीं, थोड़ा सा स्लिंगी, वो हेजलवुड वगैरह का स्टार्क जैसे करते हैं, थोड़ा सा साइड हेजलवुड देखें, ये टॉल जरूर हैं, लेकिन रिस्ट जब यूं करके लगती है ना एंड में, इन साउथ अफ्रीकन की सबकी लगती है. अगर जॉश हेजलवुड का आप बॉल देखेंगे, वो रिलेटिवली ही स्लोअर देन मिचेल स्टार्क एंड पैट कमिंग्स, लेकिन उसको बाउंस इनसे ज़्यादा मिलता है कि उसकी एंड में रिस्ट लगती है. तो ये वजह है कि जब टॉल बॉलर हैं
तो ये इस वजह से उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिलता है। एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने सो फार 50 आउट कर लिए इस वर्ल्ड कप के अंदर। Yes, जो that's कि a उनका record. एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये। That is. इनी मिनी मैना मुंह के चने के भाई वो Misbah, what's the way forward for New Zealand with all the injuries in store? He wasn't ready by any means. I could tell in his eyes he wasn't ready. पहले 15 पूरे कर लो। So that's the way forward for New Zealand. पहले 15 प्लेस पूरे कर लें। 15 तो नहीं है, 11 की बोलो आप। आई थिंक अभी तो न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है कि उनके पास 11 कौन से उन्होंने खिलाने हैं, इंजरी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। और जिस तरह का मोमेंटम ब्रेक हुआ है, 3 लगातार मैचेस हारे हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट जब आप एंड पे जा रहे हैं, स्पेशली नॉकआउट स्टेजेस की तरफ जा रहे हैं। पीक उस टाइम पे अगर आपका डिप आ जाए फॉर्म में और ऊपर से आपकी टीम जो है वो इतर बितर हो जाए इंजरीज की वजह से, मेरा ख्याल है यानी कि न्यूजीलैंड जिस तरह खेली उसी तरह खेले, बिल्कुल कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। अगर इंजरी हुई है टेक केयर करें उसकी, बट जिस तरह की आज क्रिकेट खेली ऐसी खेले जिससे पाकिस्तान को फ़ायदा हो। जिससे पाकिस्तान को फायदा हो। Those were the golden words. I know. I was like, wait, where is he going with that? इस तरह की क्रिकेट तो thank you, Moin. Good one. And that's the way forward. Right, दोस्तों, before we go into the break, I just would like to talk about Maharaj. आज साउथ अफ्रीका की तरफ से उन्होंने बॉलिंग की, and we should have spoken about that a little earlier, but I think we need to speak about that because you all noticed he was not afraid to flight the ball. He was feeding the ball. You mean Gultara? एंड में 50 रन एक्स्ट्रा खा गए यार, अपडेट हमारा। जरा उनकी आपको बॉलिंग दिखाते हैं, बड़ी ब्रिलियंट बॉलिंग बाय हिम, picked up 4 wickets. Shoaib, Misbah, take us through his bowling, man. What was he doing special? Misbah भाई ज़बरदस्त वेरिएशन, पेस वेरिएशन जो है वो कमाल है। और आप देखें कि लैंड कैसे हो रहा है उसका बॉल। यही हम जब बात करते हैं कि जो लंबी क्रिकेट के बॉलर हैं, स्पिनर्स हैं, उनका कंट्रोल बड़ा ज़बरदस्त है लेंथ और पेस पे। अभी आप देखें कि ये यहाँ से इवन वनडे मैच में वो रफ से ऑफ स्टम्प बाहर से उन्होंने जो बॉल किए हैं और लेफ्ट हैंडर्स को वहाँ से फंसाया। और ये देखें, ये टेस्ट में ऐसी बॉलिंग आपको नज़र आती है, वो भी चौथे 5वें दिन। तो पहले दिन उस पे वहाँ से जाके आउट करना, फिर फ्लाइट करके आउट करना, रिसीव करना फ्लाइट में, दैट इज़ व्हाट मिसिंग इन बोथ इन मोस्टली द टीम्स। जो ऐसे स्पिनर है ना वो नहीं है बहुत सारी टीमों के पास। इस वर्ल्ड कप में 2 स्पिनर्स हैं, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर्स, जो अपनी फ्लाइट से रिसीव कर रहे हैं, जिसे हमें कहते हैं लटका के आउट करते हैं। एक मिचेल सेंटनर है और एक महाराज। और देखें, सक्सेस आज भी ओल्ड स्कूल की वैसे ही है, इसीलिए कहते हैं बेसिक्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और इन दोनों की बेसिक्स बहुत अच्छी हैं, लिमिटेड है। T20 स्पेशलिस्ट जो हमने देखा है, मोस्टली यू आर द मोस्ट एक्सपीरियंस T20 प्लेयर इन द वर्ल्ड, वो T20 खेल के ना बस उनको सिर्फ ये तेज़ ही मारना आता है। उनको जैसे जो लटकाने वाली बात कर रही है, वो आपको जैसे मिसबा ने कहा लंबी क्रिकेट से ही आता है। वो बिल्कुल सही आता है, और इसीलिए आप सही इन्फोसाइज करते हैं इस चीज़ पे कि लंबी क्रिकेट खेलना बहुत ज़रूरी है, जिसमें 4 डे क्रिकेट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उससे ये होता है कि कंसिस्टेंसी आती है लॉन्ग रन के लिए। और 50 ओवर में यू स्टिल हैव टू बोल 10 ओवर्स, और आपको अगर बैटिंग में 100 बनाना है तो यू स्टिल हैव टू बैट एटलीस्ट 35 ओवर्स। तो इसीलिए लंबी क्रिकेट। मलिक, जो एक और डिफरेंस होता है कि जब जो रेड बॉल का स्पिनर होता है, वो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल के सारे फील्डर ऊपर होते हैं, एंड देन ही बॉल्स ओवर्स, और वो उसमें मेडन भी करता है और उसमें फ्लाइट भी और सारा कुछ करता है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल भी डिफरेंट होता है। अब वाइट बॉल का जो बॉलर होता है, नॉर्मली आपको पता है 5 बंदे बाहर हैं T20 में, तो वो थोड़ा सा 19-20 अगर आगे गिर गया गेंद या पीछे तो आप बच जाते हैं। 4 डे क्रिकेट में या टेस्ट क्रिकेट में। It goes back to what Wasim consistently says, that go play first class, go play the longer version, 4 days to develop yourself as not only a fast bowler but also as a spinner, so that you can outfox the batsman. अच्छा, इसमें डिफरेंस आप देख लें, जो यंगस्टर्स हैं उनको समझना चाहिए, क्योंकि हम इसको कई दफ़ा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। आप देखें कि अगर आप लॉन्गर वर्जन के अच्छे बॉलर हैं, चाहे वो फास्ट बॉलर हैं, चाहे आप वो स्पिनर हैं, आप हर फॉर्मेट में सक्सेसफुल हो सकते हैं। वो कंट्रोल अच्छा है ना, थोड़ी सी लेंथ खींचनी है, थोड़ी सी लाइन चेंज करनी है, थोड़ा फ्लाइट चेंज करनी है, आप कर सकते हैं, क्योंकि वो सारी वेरिएशन आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लंबे ओवर्स में करते हैं, आपका कंट्रोल अच्छा है। लेकिन एक T20 बॉलर T20 में तो बॉल कर लेगा थोड़ा सा बैक ऑफ लेंथ, लेकिन जब आप उसको करें कि फॉरवर्ड डिफेंसिव शॉट वाला बॉल करना है कंसिस्टेंटली, वो तो स्किल उसके पास है नहीं, वो कंट्रोल उसने डेवलप नहीं किया हुआ।
तो वो स्ट्रगल करेगा लॉन्गर वर्जन में, जो हम देख रहे हैं मोस्टली स्पिनर कर रहे हैं. All right, with that we're going to take a break. But when we come back, it's your favorite segment. #Ask the Pavilion. आपकी स्क्रीन पे आ रहा है. #Ask the Pavilion. Send us your questions, and our experts will answer them. See you after the break. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam. आप देख रहे हैं Sports and Sports and the ARY Zap app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup. And the news is that South Africa have defeated New Zealand with a very big margin, 190 runs. And with that, Pakistan is now hoping to sneak into the semi-finals, because now the doors have opened all of a sudden. Miracles do happen. Kudrat ka nizam is now in progress. Right, with that, it's time for #Ask the Pavilion. And एक मिनट. जी पहले फोटोकॉपी दुकान बंद करा. मोइन भाई, मोइन भाई, मुझसे कुछ लिख ही जा रहे हैं. मिसबा कह रहे हैं फोटोकॉपी की दुकान बंद करवाएं. जी चेयरमैन साहब अभी करते मेरे कॉर्नर प्लॉट का इंतकाल कर देना भाई. मैं भी बंद कर दिया देखो. हैं. लो जी दुकान बंद. All right, well done. Focus on Ask the Pavilion apparently. Oh my God. मुस्तफ़ा जैदी आपका एक्स हैंडल है Mustafa_334455ZDI. आप कह रहे हैं My humble request, I want to remind Moin Khan that he started playing sweeps and pick-up shots at a very early stage in 1999 against some of the best fast bowlers of the world. Can he share his technique with all of us young players, how he developed it way before we saw it so regularly in international cricket? Sir, अच्छे दिन थे, अच्छी फॉर्म थी. करके और दिखाओ. क्या करके दिखाएं आप, करके दिखाएं. ये मैंने करके दिखाया. आपका जो शो है नहीं वो उसके तो ठीक है अंदर. ना. यहाँ पे ठीक है, तो वो दोबारा ये आप करके अभी आप दिखा पिविलियन में, आप मास्टर क्लास में नहीं, पिविलियन में. प्लीज यू हैव टू डू दिस. चलें, लेट्स गो, कर देते हैं. लेट्स गो. यू हैव टू. दिस इज बदले लाने रहे. नहीं बदलने की बात है. आप भी सवाल उधर ही आ है. जाए ना. मैं भी आ आपने जाता भी हूँ. सीखे थोड़ा सा. आप और खेलते हैं मोइन भाई खाली करके नहीं दिखाना, बाद में आपने लिख के भी सबको भेजना है. हाँ लेके भी भेज दूँ. हाँ जी फखर साहब क्या बताना है बताइए. वो कह रहे थे कि आपने 1999 में फास्ट बॉलर्स को आप स्वीप और पिकअप शॉट्स खेल रहे थे वे बिफोर इंटरनेशनल क्रिकेट में अब हम रेगुलरली देखते हैं. तो एक तो ये आपने कैसे डेवलप की और क्या टेक्निक थी और किस तरह है कि इतनी ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट के टाइम पे आप इतने कंटेम्प्रेरी शॉट्स खेल रहे थे. तो इसकी एक तो हिस्ट्री बता दें कि ये कैसे हुआ. क्या नेट्स में आपने प्रैक्टिस की या किस तरह डेवलप हुआ, या कभी एक दफा आपने मारा अचानक आपने कहा यार ये तो शॉट बनता है. एंड देन हाउ डिड यू मेक योरसेल्फ सो कॉन्फिडेंट इन प्लेइंग दिस ओवर एंड ओवर अगेन. बेसिकली डोमेस्टिक में जब हम खेलते थे तो ट्राई तो करते थे. टीम से काफ़ी अरसे में बाहर भी रहा था. तो जब कम बैक हुआ तो मेरा ये शॉट डेवलप किया था मैंने कि जस्ट टू गेट मोर रन्स यू नो. और थोड़ा सा स्ट्राइक रेट भी उस वक्त बेहतर होता. इतना उस वक्त हम नहीं सोचते थे स्ट्राइक रेट के लिए, लेकिन ये ज़रूर सोचते थे कि आपने अगर डोमिनेट करना है अपने ओपोनेंट्स को तो आप काउंटर अटैक करके कर सकते. तो ये मैंने ये शॉट डेवलप किया था उन दिनों में. मैं थोड़ी सी बता देता हूँ. बेसिकली कोई टेक्निक नहीं, आपके सामने क्लियरली नज़र आता है टीवी पे जिस तरह शॉट कहते हैं. मेन चीज़ होती है आई ऑन द बॉल एंड पिक द लाइन. अगर आपको लाइन पिक हो जाती है जल्दी तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं उसको. स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल सकते हैं उसको, फाइन ऑफ द विकेट खेल सकते हैं. ईजी हो जाता है बहुत आपको अगर आपने लाइन पिक की हो. अगर आपने लाइन ही पिक नहीं की तो फिर ये शॉट मुश्किल है. बट अब आज की क्रिकेट में बहुत ज़्यादा एडवांस क्रिकेट हो गई है. बहुत ज़्यादा लड़के प्रैक्टिस करते हैं इन शॉट्स की. जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी जल्दी बॉल पिक करेंगे. आज भी हमने क्विंटन डीकॉक को देखा, वो लाइन पिक कर रहे थे बॉल की. दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर लाइन आप मिडल से ये शॉट करें और आपने मिस कर दिया तो नेचुरली आप LBW हो जाएंगे विकेट के सामने. आपकी पोजीशन इस बॉल को किधर लेते थे आप? फ्रंट लेग के अंदर लेते थे या बाहर से? यार मुझे तो अब याद भी नहीं, बहुत पहले 20 साल पुरानी बात है. बट मैं बता देता हूँ थोड़ा सा. बेसिकली इस बॉल को अगर आपने मिडल से भी पिक करना है या ऑफ स्टंप से भी पिक करना है, आपका थोड़ा सा आपको इस तरफ ऑफ साइड पे लीन होना पड़ता है ताकि आपको एलिवेशन मिल सके और आप खेल सके शॉट. ऊंचा मारने वाली के फ्लैट अलोंग द ग्राउंड? दोनों है. अगर बॉल थोड़ा सा आगे पिच हुआ है देन आप उसको थोड़ा स्कूप टाइप शॉट खेलते हैं. पिक आगे से करना पड़ता है, वेट आगे ही होता है आपका. और दूसरा जो मेरा एक और शॉट था वो जो लेंथ बॉल पे होता था उसको मैं ऐसे मारा करता था. वो टोटली प्रैक्टिस है और उसमें ऐसा भी हुआ है काफ़ी दफ़ा कि मैं LBW भी हूँ. बट ऐसी सिचुएशन होती थी मोस्ट ऑफ द टाइम इन माय कैरियर के नॉर्मली हम जो आखिरी 10 ओवर्स थे उसमें बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली शॉट्स खेल रहे होते थे कि रन रेट एवरेज बढ़ा लें. तो उस वजह से एक तो आपका जो क्लैरिटी ऑफ माइंड होता है इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने सोचा है
और आपकी अजम्पशन या आपकी इमेजिनेशन उस वक्त ऐसी है कि आपको यहाँ बॉल मिलेगा और उस जोन में आपको बॉल मिल जाए, तो फिर आप इजीली उसको इजीली पुश कर सकते हैं टुवर्ड्स स्क्वायर और इवन फाइन लेग। तो मेन जो चीज़ है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस जितनी रेपिटेशन आप करेंगे तो आप उतना ज़्यादा बेहतर होंगे। So Moin, what would be the best drill to practice this? What would be the best drill? I think आप थोड़े कम डिस्टेंस with that drill or थोड़े से कम डिस्टेंस के साथ आप कर सकते हैं। अगर आपको पेस पे प्रैक्टिस करनी है, पेस पे जब आपने प्रैक्टिस करनी है तो आपने थोड़े कम डिस्टेंस से करनी है, बिकॉज के मुश्किल होता है किसी का भी उस लेंथ से या उस डिस्टेंस से आपको तेज करा सके। नीचे मारिएगा ग्राउंड या ड्रिल नहीं कर सकते, ड्रिल मुश्किल होगा डेमोंस्ट्रेट करना। But just give us a demonstration physically. What should be? Should you have a net bowler bowling full tosses at you? अब टेक्नोलॉजी काफ़ी चेंज होगी है। साइड आर्म से कराते हैं कोचेज जो है वो कराते हैं। आपके पास बॉलिंग मशीन्स मौजूद हैं तो आप इजीली कर सकते हैं। रेपिटेशन ज़्यादा से ज़्यादा करनी है एंड कीप योर आई ऑन द बॉल, दैट्स द मेन थिंग, द की। All right, fair enough. Thank you very much, Moin. Really, truly appreciate it. That's amazing. We all do. एक सवाल और ले लेते हैं। अनस इसरार का सवाल है #AskThePavilion में। सामने से गुजर गया क्यों भाई, अपना शो है, नहीं गुजरेंगे। पीछे से गुजर सकते थे आप। नहीं पीछे मैं देखे एक दफा फिर गुजरता हूँ। ये देखे ये देखिए यार, That's why he is the silver fox. ठीक है ना? ब्लैक फॉक्स। अनस इसरार पूछ रहे हैं, ट्रेंट, बोल्ट, शामी, स्टार्क have the same pace, swing and fitness even after 8 and 10 years of international cricket, while our bowlers seem to be struggling, lose pace and swing after a little time in international cricket. Please ask Wasim Akram why. It's very difficult to pinpoint, but if अगर straight away जो आंसर ज़हन में आता है वो ये आता है कि हमारे फॉर इंस्टेंस शाहीन को इंजरी हो गई थी एक दो, और ये जो बोल्ट की बात की और किसकी बात की, स्टार्क की बात की, शामी की बात की, इनको पूरा लुक आफ्टर करते हैं। दे लाइक वेरी क्या उसे कहते हैं, हमारे बड़े ये काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, बॉलर स्पेशली कॉटन वूल में रखते हैं, कहाँ खिलाना है, कहाँ रेस्ट कराना है। अगर इसको नहीं खिला रहे तो उसको उसकी पे मिलेगी ताकि मोटिवेट रहें। आई रिमेंबर 1.5-2 साल अर्ली ऑन इन हिज करियर, इफ यू रिमेंबर, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन पैट कमिंस was injured, getting injured a lot. Doctor told him to have a rest for an year or year and a half or something, तो पीछे तो श्रीलंका कह रहा हूँ, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने paid him his contract money for 2 years, right, and managed him, looked after him. यहाँ पे एक लड़का हमारा एहसानुल्लाह इंजर हो गया, अभी तक पता ही नहीं कहाँ पे है। 2 सुने एल्बो के ऑपरेशन हो गए हैं उसके, and operation is the last resort, and plus surgery is again lambi cricket. This is answer for everything. There are no shortcuts. All right, with that we're going to take another break here on the Pavilion, but when we come back there's more #AskThePavilion. Don't go away, keep watching. All right, welcome back to the Pavilion. मैं हूं Fakhar-e-Alam और आप देख रहे हैं Sports and Sports in the Airways app. Our continued coverage of the ICC Men's World Cup, and we are on #AskThePavilion. और #AskThePavilion में हमारे पास सवालों का सिलसिला जो है वो जारी है। वकार मोहतसिब, okay, Wakar Mutsib, your X handle is Wakar_388254, and उनका सवाल है मिसबाह उल हक आपसे, और वो पूछ रहे हैं आपसे कि if South Africa can play 4 fast bowlers, why can't Pakistan play 4 fast bowlers since we are weak in the spin department? कर सकते हैं मेरे ख्याल में। अगला हम जहाँ पे मैच खेल रहे हैं बेंगलोर में, हमें सोचना पड़ेगा कि अगर हमारी एक चीज़ वीक है और हम नहीं कर पा रहे हैं और वहाँ पे हमें विकेट्स भी नहीं मिल रही, टॉप विकेट टेकर्स हमारे फास्ट बॉलर हैं, सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकिंग हमारी फास्ट बॉलिंग है इस टूर्नामेंट में, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ओवररेट का प्रेशर नहीं पड़ेगा कप्तान पे। ओवररेट आपको जाहिर है 40 ओवर तो नहीं कराने पड़ेंगे, यही एक प्रेशर रह गया जो उस पे डलना। जाहिर है आप उसको मैनेज करना पड़ता है आपको। आप पूरे 40 ओवर तो नहीं कराते, आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास स्टिल एक स्पिनर खेल रहा है, फिर आपके पास बैट्समैन है। आई वाज जस्ट आस्किंग कि एडेड प्रेशर तो नहीं आ जाएगा
कि भी ओवर रेट स्लो ना हो जाए, एक्स्ट्रा फील्डर ना बुलाना पड़ जाए। देखिए लास्ट कॉम्बिनेशन जो था उसमें सलमान अली आगा भी खेले हैं, इफ्तिखार भी बॉलिंग कर रहे हैं और बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, तो वहाँ लेफ्टीज़ भी हैं काफ़ी सारे, लेफ्ट हैंडर बैटर हैं न्यूजीलैंड टीम में। सो ये अच्छी ऑप्शन हो सकती है क्योंकि उनका ये कहना है कि आउट ऑफ फॉर्म है स्पिनिंग डिपार्टमेंट जो है, तो व्हाई नॉट। ऑलराइट, समीर तारिक आपका एक्स हैंडल है समीर019__. Off topic, but Shoaib bhai, your impressive average of 45 plus in West Indies suggests a great potential for the 2024 World Cup as T20 World Cup, as it will be held there in the US and the West Indies. Can we see you play and make it a memorable farewell by winning the World Cup for Pakistan, inshallah? वेल आई वुड लव टू, लेकिन ये है कि आई एम अ पर्सन जिसके साथ बात करो तो आई एम ऑल देयर फॉर द कंट्री, और फिज़िकल फिटनेस का कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्रिकेट मैं उसी तरह खेलता हूँ जैसे मैं यंग एज में खेलता था, और ये है कि यस आई एम अप फॉर इट। अगर मुझसे बात करेंगे आई विल डेफिनेटली कंसिडर। All right, awesome. I hope the people who need to listen to that have heard you loud and clear. I have a question from Hassan Beg. Assalamu alaikum Hassan, क्या हाल है आपके? आप ह्यूस्टन में रहते हैं, आपने लिखा है one of the best shows of cricket. Question to all panelists: Are there will be any dance moves on the table if we qualify for the semi-final? Love from Houston. Hassan, आप परेशान ना हो, इसको बांध के रखा हुआ है मोइन को भाई, इसकी पाँव के साथ जंजीरें बांधी हुई नहीं थे, उठ के स्टेज पे नचना सी। ये किधर से बात आई यार? मैं आप लोगों के स्टेप्स देखे प्रीवियस ईयर्स के अंदर जो और आप लोग आपने प्रैक्टिस की है उनको बीट करने की। एक हल्की सी झलक वो वाली जो आप हमें दिखाते होते हैं, दिखा दे हल्की सी, वो बस ये हल्की सी, एक हल्की सी बात, वो सामने देखे ना, वो देखे वो पाकिस्तान जीतने दे पहले इंशाल्लाह ताला। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, बट don't hold back buddy. Which table there? Yeah. Meanwhile, another thing, क्योंकि मेरे पास hashtag Ask the Pavilion में बहुत सारे आने शुरू हो गए हैं मैसेजेस। एक क्लिप हमने शेयर की, आज तो नहीं हम आपके साथ शेयर कर सकते, बट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज। तो मुझे बताया गया है देयर टू ऑस्ट्रेलियन गाइज हु वर टॉकिंग एंड दे आर अपेरेंटली कॉल्ड ग्रेट क्रिकेटर्स, इनका यूट्यूब चैनल है, एंड इट्स इयन एंड सैम, एंड आई जस्ट फाउंड आउट दैट वसीम ऑल्सो did an interview with them. So thank you for everybody to kind of putting us together. Maybe we could do a collab with them, Wasim. Yeah. Hi Sam, hi Ian. Good to see you guys on your X handle. You guys were good. I interviewed with you guys about 3-4 months ago. I don't even remember, maybe last year. But keep up the good job. All the best. Yep. And also, if what I was explaining on the pitch, if you really guys want to know how to play off spin, I'll explain to you guys as well. Apparently, you were explaining it to Babar Azam and Virat Kohli. Yeah, apparently. They didn't understand. Let me explain this in very simple words. हम किसी को नहीं सिखा रहे, वो ग्रेट्स ऑफ द गेम है। एक जनरल बात कर रहा था वो, इन जनरल एने फारिग लोग हो तुसी। नहीं वो एक्चुअली आई थिंक दोनों मुल्कों के, एक मुल्क के नहीं, उधर से भी। So basically what Malik was doing was showing us कि where are just some issues that they have and how differently they tackle them. He took big names, they're the big names. मल्ले दे मी देदा ना तो नहीं लेगा ना, देखो प्रॉब्लम हो रही है। एक चीज और बड़ी इंटरेस्टिंग है कि मलिक ने एक चीज और भी बोली, जब वो विराट कोहली के फुट की प्लेसमेंट की बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो इस तरह उनका पांव जाता है, he still manages to hit big sixes. You know, despite. So he's not saying that he doesn't know how to play off spin. He's saying is that even with that position, he knows how to hit the big sixes and all that and everything. So with that, we are going to take a little break here on the Pavilion. We'll see you on the other side. Welcome back to the Pavilion. मैं हूं फखर-ए-आलम, आप देख रहे हैं Sports and the Airwise app and our continued coverage of the ICC Men's World Cup 2023. And the news is South Africa winning their game against New Zealand with a big margin, which has now given hope to Pakistan to maybe sneak into the semi-finals. We've been talking about that. Hashtag Ask the Pavilion का सिलसिला जो है वो जारी है। इससे पहले कि मैं उस सवाल की तरफ जाएं, एक कुछ 8-10 मैसेजेस आए हैं इकट्ठा हैशटैग Ask the Pavilion के ऊपर। मोइन सब आपसे कह रहे हैं कि आप कमिटमेंट दें कि आपने जो आप बोला है दे दी। मैं क्या जलते तवे में मैं आपको बता दूं, मोइन एक दफा कमिट करते तो वो अपनी भी नहीं सुनता फिर। बिल्कुल ऐसे ही। All right, Shoaib Malik, you have a question. Go for it. I have a question. इनका X handle है Saad Nadeem, Saad N2324. Ask the Pavilion question है, सब लोगों से है. Should Wasim Jr. pair with Shaheen
in the power play, or will we see Hassan Ali back? What is the panel's best 11 to win against New Zealand? I can answer the first one, and we can give all our opinions. I think the way Wasim bowled in the last two games, he's in good rhythm, he's got his confidence back, and most importantly, he's bowling at the right lengths and with pace. And अगर मैं हूँगा, मैं उसको ड्रॉप नहीं करूँगा. शायद चौथा जैसे मिसबा कह रहे हैं, मैं भी सोचूंगा खिलाने का, बट मैं I won't drop Wasim because वो मुझे विकेट लेके देगा. नए बॉल पे बात कर रहे हैं. But now I don't understand. नए बॉल से उसको सिखाना पड़ेगा यार. करेगा नहीं तो बॉलर क्या है कि जो नया बॉल से नहीं कर सकता, पुराने बॉल से कर सकता है. For me, bowler has to learn at this level, at playing for his country level, international level, they should be able to do either. जिस रिदम से बॉलिंग कर रहा है, चांस ले सकते हैं. जिस पेस से गेंद कर रहा है, you never know, एक बॉल पड़ने की बात होती है, आपको विकेट मिलती है नए बॉल से. अच्छा, ये है तो है, ये आज पवेलियन का नहीं है सवाल, मगर ये हमारी टाइमलाइन के ऊपर आ गया, जो कि बहुत सारे लोग इसको भेज रहे हैं. सुशांत मेहता हैं आपका, आपने नहीं भेजा ये सवाल हमें हैशटैग आज पवेलियन पे, बट आपका एक ट्वीट है जो आपने टैग किया है शोएब मलिक को. सुशांत मेहता, आप फाउंडर और सीईओ हैं किसी स्टूडियो के, सिनेमा के, स्पोर्ट्स यारी के, समथिंग लाइक दैट, और आपने शोएब मलिक आपका वीडियो लगाया है और उन्होंने उस पर लिखा है, हे शोएब, थैंक्स फॉर टीचिंग विराट कोहली हाउ टू बैट. अब आप प्लीज बच्चन साहब को एक्टिंग भी सिखा दीजिए. वेल डन. सुशांत मेहता साहब ने आपके लिए पैगाम आपको टैग करके भेजा है उन्होंने. लेकिन शोएब से पहले वसीम भाई को बोले इसका प्लीज छोटा सा एक जवाब दे दे. नाम ओके. Whatever rocks his boat, man. ठीक है. देखिए, अगर तो पहले तो ये है कि आपको थोड़ी सी सेंस होनी चाहिए ये चीज़ को समझने के लिए कि दुनिया में ना कोई बैटर आया है ना कोई आएगा. बेशक उसके 1 लाख रन्स बना दे कि वो कई जगह पे फंसता ना हो, उसको किसी बॉलर के अगेंस्ट वो स्पिनर को भी अच्छा खेलता हो, पेसर को भी अच्छा खेलता हो. आप लोगों को बात नहीं समझ आई. मैंने ये कहा कि कोई भी बैटर जिसकी टांग क्रॉस जाती है वो स्पिन को तंग होता है. और अगर आपने एग्जांपल्स देखनी है या बहुत सारे ग्रेड्स हैं, आप किसी से भी पूछ लें, जब आपकी क्रॉस टांग जाएगी स्पिनर को खेलते हुए तो जब बॉल अंदर आता है वो तंग करता है आपको. और वो मोइन अली से भी काफ़ी, मैंने ये नहीं कहा उनको नहीं खेलना आता, मैंने ये कहा कि थोड़ा सा उनको अनकंफर्टेबल होते हैं ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट खेलते हुए क्योंकि उनकी टांग क्रॉस जाती है. दैट्स ऑल. और शायद थोड़े से और प्रोग्राम्स देख लेते तो मेरे ख्याल में आई ऑलवेज प्रेज हिम. He's again, one of the great. We just said that before the break, you weren't teaching Virat Kohli how to play. He was just making an observation. So please, Sushant, I hope you'd see the whole program, and I hope that. And there's nobody here who's going to teach Bachchan Saab how to act. I don't think he needs any lessons whatsoever. However, some people do need to watch everything in detail and understand before they make a comment. Correct, Wasim? Yes. All right, folks, and with that, I think it's almost time. Let's see what we have in store for you tomorrow. कल आपके लिए एक और मैच लेकर आ रहे हैं, and this is the big one. It's India versus Sri Lanka that's coming out from Mumbai, and this is going to be a special game. India versus Sri Lanka live Mumbai. We are going to be back here in the studios at 12. कल 12 बजे आप लोगों की खिदमत में हाजिर होंगे, and this should be great fun. Now, I will not be in the studios for the next 2 days. I'll be traveling again tonight. But I would like to thank all of you guys, and Imran will take over for me. With that, Shoaib, thank you very much. Outstanding, fantastic. Moin, thank you very much. Outstanding, fantastic. Misbah, thank you very much. Don't hold back on my account while I'm gone for the food. And Wasim, thank you very much. तो मैं गल सुनता जाऊंगा. Kanigba. And you have a safe trip. Thank you, please. Yeah. Right there. And with that, it's 8-bit Gul Khan. Good night.